Students, how are you all? I hope this video finds you well. So student, this is your Dr. Minakshi and today we are going to study a new topic which is factor affecting conductance. Students, in last video we have already studied about the conductance and the various type of conductance like molar conductivity, equivalent conductivity. We have already dealt with these terms, right? And we have also included many of the terms which are involved in this conductance topic. But in this we are going to study about the factors which are affecting the conductance. So students, basically there are three factors which are affecting conductance. Among them the first one is temperature. The first factor which affects the conductance is called temperature. Temperature affects the conductance. And the second one is nature of electrolyte. The second is nature of electrolyte. And the third factor, which is the most important factor, is the concentration of electrolyte, or we can say the concentration of ion. Okay, so students, the factors which affect the conductance is the temperature, nature of electrolyte, and the third one is concentration. Okay, now students, just keep in mind that conductance always depends on two factors. The first factor is number of ions. It depends on number of ion. More the number of ion, more will be the conductance. अगर ions ज़्यादा होंगे तो conductance भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. And the next factor is the mobility of ion. Mobility of ion. ओके, नाउ अगर मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ज़्यादा होगा, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, अगर मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी. तो देयर आर टू फैक्टर्स which decide the conductance. First one is number of ions and second one is mobility. Both factors are directly proportional to the conductance. Okay, now let's see each factor one by one in detail. So let's get started with the topic temperature. How temperature affects the conductance. Students, on increasing temperature, when we increase temperature, you know that kinetic energy also increases because temperature is directly proportional to the kinetic energy. So on increasing temperature, what happened? Kinetic energy increase. In short, we can say that on increasing temperature, mobility of ions increases, right? And because mobility increases, conductance also increases. In short, we can say that temperature is directly proportional to conductance. अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो mobility of ion increase हो जाएगा. और ion की mobility क्यों increase हो रही है? क्योंकि kinetic energy increase हो रही है. जैसे ही motion बढ़ेगा तो conductance भी बढ़ जाएगा. तो temperature directly proportion है concentration के. Okay, now let's see the next फैक्टर विच इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. टेम्परेचर बहुत ही इजी है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है. दोनों ही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. So students, let's see the nature of electrolyte. Students, the conductance, I have told you that conductance depends on the mobility of ion or it depends on the number of ion. So over here, conductance depends on the number of ions. More the number of ion, more will be the conductance. Okay, now students, suppose there are two solutions, solution first and solution second. These both solution of electrolyte have same concentration. These both solution of electrolyte have same condition. इन दोनों की concentration same है. Suppose मान लीजिए कि 1 m concentration है और हमने temperature भी same रखा है. मान के चल लीजिए कि temperature हमने लिखा है 298 केल्विन और इसमें भी temperature है 298 केल्विन. तो दोनों ही जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों ही जो सॉल्यूशन है, उनकी मोलर कंडक्टेंस जो मोलरिटी है, कंसंट्रेशन है, वो 1 m है और टेम्परेचर भी दोनों में सेम है. लेकिन अगर फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है
दोनों कंडीशन सेम होने के बाद भी अगर इसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा है तो इसकी कंडक्टेंस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसके कंपेयर में, फर्स्ट वाले के कंपेयर में अगर सेकंड वाले के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम है तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। अंडरस्टूड। तो बच्चों सीधा ही कॉन्सेप्ट है कि कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, अगर दोनों ही सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस चेंज है तो उनकी कंडक्टेंस भी चेंज होगी। ठीक है, तो बच्चों कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना आयनाइज होता है, कितना आयंस प्रोड्यूस करता है, उसके बेसिस पे हम नए टर्म को डिराइव कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिसोसिएशन आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ एक्सटेंट into which a particular electrolyte can get ionized। ठीक है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट कितना आयनाइज हो सकता है उसको हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम पहले एक दूसरा टर्म पढ़ते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रखा है जिसको हम आयनाइजेशन बोला है, डिसोसिएशन बोल रहा है। तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या है हम उसको समझ लेते हैं। आयनाइजेशन या डिसोसिएशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आयन। कोई भी मॉलिक्यूल जैसे हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल उनके आयंस में जब टूटता है तो उसको हम डिसोसिएशन बोलते हैं। जब मॉलिक्यूल, सपोज एक मॉलिक्यूल दे रखा है ए बी और ये टूट जाता है ए प्लस और बी माइनस में, तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन होना, डिसोसिएशन होना। क्या हो रहा है, ए बी डिसोसिएट हो रहा है ए और बी में। तो डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन इज आयनाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन मॉलिक्यूल गेट split into its ion, when molecule get split into its ion then it is known as dissociation or ionization। understood। तो ionization dissociation simple मतलब है splittance of molecule into its ion। जब आपको ionization और dissociation समझ में आ गया है तो आप degree of ionization and degree of dissociation को easily समझ सकते हैं। तो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल। क्या है ये, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एज आयन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की, कि कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन आयनिक फॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल जो है वो अपने आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो जब आपको आयनाइजेशन समझ में आ गया, स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आयन, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इजीली समझ सकते हैं। इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आयनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो लेट्स सी इसका फॉर्मूला क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ओके, आप अल्फा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको कहा है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो रहे हैं अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू आयंस अपॉन total molecules, dissociate into ions upon total number of molecules। ठीक है, तो अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो रहे हैं आयंस में अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। तो जो फ्रैक्शन हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको कहा है हम ये कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट तो बता दिया है कि जितने नंबर्स ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्टेंस भी
ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि आयनाइजेशन क्या होता है। आयनाइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इट्स आयंस। ठीक है, हमने वो भी पढ़ लिया। फिर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पढ़ लिया है। ये फ्रैक्शन है ऑफ द मॉलिक्यूल विच कन्वर्ट इनटू आयंस। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट की तरफ। नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी सॉल्यूट का नेचर कैसे कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। ओके, so let's see about the nature of solute. So students, there are two type of solutes. We are talking about electrolytes. Okay, so there are two type of electrolytes. The first one is strong electrolyte and the second one is weak electrolyte. Second one is weak electrolyte. So student, strong electrolytes are the electrolytes or the substance which get completely ionized into which get completely ionized at any dilution. Okay, so strong electrolyte get completely ionized. It get completely ionized at any डाइल्यूशन। ठीक है, अब डाइल्यूट चाहे कम करें आप ज़्यादा करें, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा। मान लीजिए अगर tan AB के पार्टिकल है तो ये tan A प्लस और tan B माइनस बनाएंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें डाइल्यूट कर रहे हैं तब जाके आयनाइज बन रहे हैं, नहीं, जैसे ही आपने इसको वाटर में ऐड किया या फिर किसी भी सॉल्वेंट में ऐड किया, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स सब्सटेंस विच गेट आयनाइज्ड। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस विच आयनाइज, राइट। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सब्सटेंस जो आयंस फॉर्म करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें फर्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही tan AB के मॉलिक्यूल मैंने वाटर में डाला, वैसे ही tan A पॉजिटिव और tan B माइनस में ये स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ तो बच्चों जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पार्शली आयनाइज होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने 10 पार्टिकल्स लिए हैं AB का, तो इनमें से लगभग जो 5 to 6% जो होते हैं वो ही आयनाइज होते हैं। मतलब आप लगभग मान लीजिए कि 6 पार्टिकल्स A में कन्वर्ट प्लस मुझ कन्वर्ट हो जाएंगे और 6 पार्टिकल B माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो 10 में से 6 पार्टिकल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने क्या बना दिया, 6A प्लस 6B माइनस, और रिमेनिंग जो 4AB हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर अगर आप और डाइल्यूट करते हैं तो ये आगे और स्प्लिट हो सकते हैं, बट फॉर नाउ जब भी हम इनमें वाटर में डालते हैं, इनको ऐड करते हैं, तो ये पार्शली ही आयनाइज होते हैं। मतलब पूरे 10 के 10 मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होंगे, कुछ पार्टिकल्स ही आयनाइज होंगे और कुछ इंटैक्ट रह जाएंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और जो वीक होते हैं वो पार्शली आयनाइज होते हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें एग्जाम्पल्स की, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, एंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जितने भी एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो किसके अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। अगर हम वीक की बात करें तो इसमें वीक एसिड आता है, वीक बेस आता है, या फिर सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। ठीक है, तो ये इनके अंदर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आप वाटर ऐड करते हैं, इन शॉर्ट जब आप इसको डाइल्यूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूशन से क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी
बढ़ जाती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके पीछे सिंपल रीजन है, मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स तो नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आयन्स जितने बनने थे वो बन चुके हैं। 10 बनना था तो 10 आयन्स, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स बन चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे और तो डिसोसिएट हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 ही पार्टिकल्स थे हमारे पास में, तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो गए। लेकिन अगर डाइल्यूट करते हैं, हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल को स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए, तो मोबिलिटी बढ़ने की वजह से इनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, हम पानी और ऐड करते हैं, तो क्या होता है, नंबर्स ऑफ आयंस और बन जाते हैं। मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम वाटर ऐड किया तो मान लीजिए 6 पार्टिकल डिसोसिएट हुए ए और बी के अंदर, ठीक है। फिर जब आप और वाटर ऐड करेंगे तो उसमें जो 4 पार्टिकल्स इंटैक्ट बचे, इनमें भी हो सकता है कि 3 पार्टिकल्स और डिसोसिएट हो जाए, फिर 2 पार्टिकल और डिसोसिएट हो जाए, तो ये फर्दर और डिसोसिएट हो जाएंगे। तो हमारे पास 6 कैटायन और 6 एनायन तो ऑलरेडी थे ही हमारे पास में, लगभग 3 कैटायंस और 3 एनायंस हम राउंड ऑफ मान के चलते हैं कि 4 में से 3 डिसोसिएट हो गए, तो हमें और आयंस मिल जाएंगे। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। इन शॉर्ट दोनों के अंदर ही, अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं, वीक की बात कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ेगा। एक में मोबिलिटी की वजह से बढ़ेगा और दूसरे में नंबर ऑफ आयंस की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। अब चलो डाइल्यूशन की बात नहीं करेगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। हम डाइल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, 10 पार्टिकल्स है वो 10 ए पॉजिटिव बी नेगेटिव में, मतलब टोटल मिला के 20 आयंस बन चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कितने पार्टिकल्स थे, 10, ये पार्शली डिसोसिएट होते हैं, तो 6 ए पॉजिटिव 6 बी नेगेटिव, तो टोटल मिला के यहाँ पे हमें 20 आयंस मिल रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं, 12 आयंस। और आप जानते हैं जैसे ही आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो आप अगर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कंपेयर करेंगे तो अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमने कंसंट्रेशन सेम ले रखी है, हमने टेम्परेचर सेम लिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस फॉर्मेशन होंगे और वीक में कम आयन फॉर्मेशन होंगे। इस वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज़्यादा होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस कम होगी। हम सीधा नंबर ऑफ आयंस की बेसिस पे बता रहे हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को देख के बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं इन कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस वजह से इसमें कंडक्टेंस भी कम होगी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कंडक्टेंस देता है क्योंकि मोर आयन प्रोड्यूस करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कम कंडक्टेंस देता है क्योंकि कम इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों हमने देख लिया है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कंडक्टेंस अफेक्ट होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस है तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा आएगा। तो हमने इस सॉल्यूट के बारे में पढ़ लिया है। तो लेट्स सी नेक्स्ट फैक्टर in the same topic, that is nature of solvent. So let's see nature of solvent. Okay. Nature of solvent. So students, the main function of solvent is to weaken the electrostatic force of attraction between the ions and to separate them. ठीक है, तो जो सॉल्वेंट होता है इसका जो मेन रोल होता है, द मेन रोल ऑफ सॉल्वेंट इज टू overcome the electrostatic force of attraction between the ion. Its main role is to, I'm writing over here, to overcome the electrostatic force of attraction between ions and to separate them, and to separate them. Okay, so this is the major role of the solvent. Now students, the force of attraction which is present between the particles, suppose there is A and B particles and the force of attraction between A and B can be given as a formula, that is force of attraction F is equals to 1 upon K Q1 Q2 upon R square.
Here students, Q1 and Q2 is the charge of A and B, R is the radius, and K is the dielectric constant of medium. What is K? The important role is of K. K is dielectric constant of medium. Now students focus. Dielectric constant of medium. Now student focus, you can see here that F is inversely proportional to K. It means अगर dielectric constant ज़्यादा होगा मीडियम का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स कम हो जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे. तो कहने का मतलब ये है किसी भी सॉल्वेंट का K ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, किसी भी मॉलिक्यूल को आयंस में डिसोसिएट कर सके, आयंस में क्या कर सके, डिसोसिएट कर सके. ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी सॉल्वेंट का के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए. अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है ए और बी के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा. और जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स कम होगा वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, वो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में. ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखूं तो हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ कैपेसिटी टू सेपरेट द आयन. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आई एम राइटिंग हियर के, इट इज अ कैपेसिटी ऑफ मीडियम to separate molecule into ion. Okay, now students, you know that water is considered as a universal solvent. Water is considered as a universal solvent. You know why? Because dielectric constant of water is 81. It means it have very high dielectric constant, it have maximum dielectric constant. therefore इसके अंदर हम जो भी ऐड करते हैं वो इसके अंदर soluble हो जाता है, आयनाइज हो जाता है. तो वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 81 है. इन शॉर्ट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें हम जब भी कोई भी कंपाउंड डालते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, स्पेशली पोलर एंड सॉर्ट ऑफ द अदर कंपाउंड्स ऑल्सो गेट डिजॉल्व इनटू द वाटर because of its high dielectric constant. अगर बच्चों मैं मिथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूं, CH3OH, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 35 होता है. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द इथेनॉल C2H5OH, तो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है थोड़ा और कम होता है, 27, इसलिए अच्छे सॉल्वेंट की तरह वर्क नहीं करते हैं. और अगर मैं एसीटोन की बात करूं तो एसीटोन भी हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, आपको पता है, बट इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है, 21. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इथेनॉल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 27 है, मेथेनॉल का 35 है, एसीटोन का 21 है. ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है, वाटर का. दैट्स वाई वाटर इज यूज्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट्स द कंडक्टेंस. अगर किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वो आयनाइज में कन्वर्ट कर देगा मॉलिक्यूल को, और जैसे ही वो आयन में कन्वर्ट करेगा तो आयंस क्या करेंगे, कंडक्टेंस को बढ़ा देंगे. तो के बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ती है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. किसी भी सॉल्वेंट का के ज़्यादा होना चाहिए ताकि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा. सिंपल. Okay, so let's move to the next factor in the same topic, which is dilution. Let's see how dilution affect the conductance. So students, you know, when you dilute a solution, it means in that you add water. Okay, on adding water, what will happen, volume of solution will increase, और you can say that either हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंक्रीजेज या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर को ऐड करना, हम उसमें वाटर ऐड करते हैं डाइल्यूट करने का मतलब। और जब हम वाटर ऐड करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है और साथ ही साथ में कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो हम अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं, ठीक है, दो ही फैक्टर्स हमने पढ़े हैं अभी तक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, आयंस तो पहले ही पूरे डिसोसिएट हो गए थे, आपने और वाटर ऐड किया तो उनको स्पेस मिल गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। तो स्पेस बढ़ने की वजह से इनकी मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आयंस की तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करती हूँ तो इसमें अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, आई टोल्ड यू कि कुछ पार्टिकल्स डिसोसिएट हो जाते हैं और कुछ इंटैक्ट रहते हैं। अगर आप और डाइल्यूट करेंगे तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, और डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, डाइल्यूशन करने पे नंबर्स ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है बच्चों, देखो ये दो फैक्टर्स तो हमने अभी ये देखा है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। बट बच्चों अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आयंस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हम कहते हैं कम हो जाएगा। ठीक है, पहले मान लीजिए कि वॉल्यूम बहुत कम था, इस तरीके से आयंस थे यहाँ पे, ठीक है, और अब वॉल्यूम बढ़ गया है तो ये ही जो चार आयंस है, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक हमें यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। तो हम पर्टिकुलर जितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिया, ये जो वॉल्यूम है अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो उस वॉल्यूम में सिर्फ एक ही आयन है, नेगेटिव आयन हमें दिख रहा है। तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में यहाँ पे चार आयंस थे, हमने डाइल्यूट किया तो उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में हमें सिर्फ एक आयंस मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे डाइल्यूशन करने पे। इस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डाइल्यूशन बढ़ाने से स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है ड्यू टू दिस रीजन, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग में मोबिलिटी की वजह से और वीक में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर्स ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, इस टॉपिक को हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे, अभी मैंने आपको सिर्फ ब्रीफिंग दी अबाउट दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स सी the next factor in the same topic, which is the last factor in the same topic. Okay, so let's see that topic. So student, let's see the temperature, how temperature affects the conductivity. We have already studied the first factor, temperature, so this is similar to that, right? See student, अगर temperature बढ़ेगा तो किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो आप जानते हैं उसका मोशन भी क्या होगा, उसका मोशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करता है तो वो तेजी से मूव कर लेगा। अगर मोशन करेगा तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर वो तेजी से बढ़ेगा तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अगर डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से बच्चों क्या होता है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी वजह से मूवमेंट या मोशन या मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी बढ़ने की वजह से जो
पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, डिसोसिएट होगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आयंस का कन्वर्ट होने का मतलब नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना, और जैसे ही आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। इन शॉर्ट टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू each other. Okay, it's very simple I guess. So students, till now नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको 4 फैक्टर्स पढ़ा दिए। द फर्स्ट फैक्टर वाज द नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब जो सॉल्यूट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कम कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमने ये देखा था कि सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज़्यादा है तो वो किसी भी पार्टिकल्स को अपने अंदर आयनाइज कर देगा और आयंस बनते ही कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी तो बढ़ती है क्योंकि एक में मोबिलिटी बढ़ रहा है और सेकेंड वाले में नंबर्स ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, राइट। और लास्ट हमने देखा था कि अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की हम बात करें तो डाइल्यूशन बढ़ाने से वो कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया कम हो जाते हैं। और लास्ट हमने देखा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में हमने सिंपल देखा है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड 2 फैक्टर। द फर्स्ट वन वाज द टेम्परेचर एंड द सेकंड वन वाज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी in the next video we will study about the concentration, how concentration affects the conductance. So at the last I'm going to give you brief points, so just go through that brief points, okay. So till the next video, please take care of yourself and be safe at your home.